میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا. غفار ہے ستار ہے سلطان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا. اب بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا. ہوتا ہے کرم سب پہ یہ مالک کا نگر ہے. ہوتا ہے مل جائے تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا. بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا. اخبار نکالتے تھے اور پھر یہ کہ ان کی تحریر کردہ کشمیری میں گاشر ایک کتاب میں نے پڑھی. وہ ایک شاعر، ایک صحافی اور ترجمہ کار، اور پھر ایک بڑی کتاب جو ہے جس پہ کافی تنازع ہوا، وہ جگناتھ آزاد کی کتاب اقبال اور کشمیر جب چھپی ہے تو اس کی ایک طرح سے بہت ہی مذمت بھی کی اور مزاحمت بھی ہوئی ان کی اس سلسلے میں. کیونکہ جگناتھ آزاد نے جو اقبال کے کلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں جو اقبال نے یہ کہا ہے کہ ایک دریا جس کے ہنگامے سے جو ایک دریا پیدا ہوا اور جس نے 100 ماؤں کا دودھ پیا ہے، تو اس کو آزاد صاحب نے کہا تھا کہ یہ شیخ عبداللہ ہے، اور جو ایک اور شخص ہے مولوی احمد اللہ حمدانی ہے وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. اور جب میں نے اقبال اور کشمیر پہ کام کیا تو میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ کیونکہ علامہ اقبال نے اس کا جو جاوید نامہ ہے، جاوید نامے میں خاص کر کے وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے، تو جاوید نامہ 1928 میں لکھنا شروع کیا اور 31 میں وہ چھپ بھی چکا تھا. تو یہ تحریک جو کشمیر کی ہے وہ 1931 کے بعد شروع ہوئی. تو اس میں شیخ عبداللہ، اس کتاب میں جاوید نامہ میں شیخ عبداللہ یا دوسرے جو بھی زعما کشمیر کے ہوئے ہیں ان کے ہونے کا کبھی بالکل کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو یہ ایک مطلب ایک بہت بڑا اس نے مطلب ایک اس وقت ایک یہ قدم اٹھایا تھا. اور اس میں یعنی جو اقبال کے ساتھ جن کی یا اقبال اور کشمیر کے تعلق سے جو لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں تو وہ متزلزل بھی ہوئیں اس کے لکھنے سے. اور پھر انہوں نے خود ایک اقبال اور کشمیر کتاب لکھی اور کئی کتابیں لکھیں، کم و بیش 30 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، اور کشمیری، اردو اور انگریزی میں یہ لکھتے رہے. اور ایز اے مطلب رپورٹر، ایز اے دوسری جو مطلب صحافی کے طور پر انہوں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے، یا ان کے جانے کا بھی افسوس ہے، رحمان راہی کے جانے کا بھی افسوس ہے. ہم نے ان کا بھی دن منایا اور آج یہ ان کے لیے ہم مطلب یہاں جو تعزیتی میٹنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں نام لیے بغیر ایک شخص کا مکتوب آپ کو سناتا ہوں تاکہ انداز ہو کہ مرحوم و مغفور جناب غلام نبی خیال صاحب ایک قاداور علمی ادبی شخصیت تھے. اگر ان کے جسمانی قد قریباً 165 سینٹی میٹر کے 1 سینٹی میٹر پر ایک شخص بھی جنازے یا تعزیتی جلسے میں آیا ہوتا تو حق ادائیگی ہوتی.
मगर नहीं, उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग थे। जनाजे में भी कलील तादाद थी और ताज़ीती इजलास में भी यही हाल था। एक मुकर्रिर ने यह बात कही कि एक और हाजिर मजलिस ने भी कहा कि यही हाल मरहूम रहमान रही के तहजीज़ तकफ़ीन के दौरान भी देखा गया। इसराइली हमले में एक ईसाई फौत हुआ, उसकी लड़की कनाडा से जनाजे के लिए आई। उनके जनाजे में कम से कम 10 लोग होने चाहिए। लड़की ने सोशल मीडिया पर इन 10 आदमियों के लिए रिक्वेस्ट डाली, नतीजतन 20,000 लोग आए। अब आप खुद सोचें हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। नहायत ही अफसोस का मुकाम है। यानी ये है हम लोगों का, हम चाहे जो अदब से वाबस्ता हैं, कि मैं ये सोच रहा था, हकीकतन ये मैं सोच रहा था, आपने तो चिट्ठी मेरे नाम से, मैंने सोचा था कि शायद आप कुछ और करेंगे, लेकिन मेरा नाम मैंने कहा अपने नाम से निकालें आपने। मैं ये सोच रहा था कि आज, ये सोचते हुए मैं आया था कि आज हमारे कोई इतवार तो है नहीं, तो मैं दूसरी अदबी अंजुम। हमारा यहाँ यकजा होने का बुनियादी मकसद क्या है? पहला मकसद तो यही है कि एक बहुत बड़े लीजेंड कहना चाहिए मुझे इनको, नामवर शायर, अदीब, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी ग़ुलाम नबी ख़याल साहब को हम खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैंने ग़ुलाम नबी ख़याल साहब को बहुत बाद में देखा और जब कमोबेश मेरे ख़्याल में मैंने कोई 10 साल से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। मुख्तलिफ़ अदबी अंजुमनों, प्रोग्रामों में भी उनको देखा, सुना। उनकी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ एक खूबी जो थी वो ये था कि वो आसानी से किसी बात पर कंप्रोमाइज़ करने वाले आदमी नहीं थे। हक़ को हक़ कहना, सच बोलना, लेकिन तारीख़ है कि सच बोलने वालों को किस तरीके से मायूस की होना पड़ा है और क्या कुछ होना, लेकिन सच सच है, सच गालिब रहेगा और सच ही के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को वजूद में लाया है। ग़ुलाम नबी ख़याल साहब मुतनव्वो और मुझे यूँ कहना चाहिए कि कसीरुल जिहाद शख्सियत थे, अदब के एतबार से भी, कि उनको ना सिर्फ़ उर्दू पर कमांड थी बल्कि फ़ारसी और जनाब अंग्रेज़ी, कश्मीरी, ख़ास तौर से इन तीन ज़बानों पर तो बहुत ज़्यादा दस्तरस थी। मुझे उन्होंने फ़ोन करके एक ज़माने में, आज से 6 साल पहले या 8 साल पहले गालिबन, फ़ोन किया कि मुश्ताक अहमद वानी, मैं आपको की तहरीरें कश्मीर उज़्मा के तवस्सुत से मेरे सामने आती है, तुम लिखने पढ़ने से दिलचस्पी रखते हो, मेरी दुआएं हैं कि तुम आगे बढ़ो और मुताला आपका वसी होना चाहिए, आप लिखते रहिए और मुताले के साथ लिखिए। तो कहा कि मैं एक किताब आपको भेज रहा हूँ ख़याल कलम के नाम से। वो किताब आई और 250-300 पेज की किताब वो मैंने पढ़ी। बात पर और गैर शख्सी भी हैं और शख्सियात से मुतल्लिक़ भी बहुत सारे मज़ामीन हैं। तो मैंने उस किताब को बड़े शौक़ व ज़ौक़ से पढ़ा और सुकून कि एक कोहना मश्क कलमकार जब लिखता है तो वो ज़िंदगी को और ज़िंदगी के मसाइल को ही नहीं बल्कि वो कर सकता है। मैंने उसे पढ़ा और मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, आदमी चाशनी हासिल हुई मुझे उससे, और मैंने ज़बान किसी हद तक थोड़ा बहुत मैंने सीखी ज़बान, और उनका ये किस कदर बालिदा था। तो बहुत सारे उसी किताब में मुझे एक मज़मून से मुतल्लिक़ ये भी पढ़ने को मिला कि उनको जेल भी जाना नसीब हुआ, किसी एक उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है। तो काफ़ी शदाइद से उनकी ज़िंदगी गुज़री, लेकिन मेरे ख्याल ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जद्दोजहद की है और लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि हालात जिस तरह के भी आएँ, आप हमेशा हक़ का साथ दीजिए। इन फरमाए उनके लवाहिन कि इनको सब्र जमील अता फरमाए, और हम जो ज़िंदा हैं हमें आखिरत की ज़िंदगी में अल्लाह कबूल फरमाए मेरी इस दुआ को। और कुछ नहीं है। तो ये भी इसीलिए अलामा का ही शेर है कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, हकीकत में वो कभी हमसे जुदा होते नहीं। मुझे बहुत अफसोस है कि मतलब आज से कोई 2 महीने पहले मेरी मुलाकात उनके घर हुई, ख़याल साहब के घर में गया, और उससे पहले भी हमारी बातचीत तो होती रहती थी। उनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, हम गए वहाँ, मेरे साथ ये जो है ब्रिजनाथ बेताब साहब भी थे। तो
वो उसने अपने कमरे में उन्होंने टेबल शेबल लगाया था और उनके घर में एक नौकर था बिहार का, तो बस और कोई नहीं था वहाँ। उनके बच्चे बाहर हैं, बीवी भी कहीं दूर थी के। बहरहाल वहाँ हम बैठे तो बिल्कुल ठीक लगा रंग का, जैसे इन्होंने शाहिद साहब ने कहा, ये इनकलाबी रंग का इंसान था। और जेल क्यों गए? हजरत बल केस जो मशहूर केस है, उसमें मतलब इनको वहाँ जेल भेजा गया, 1 साल ये रहे और वहाँ भी इन्होंने किताब लिखी, नहीं 1 साल ही लिखा है इसमें। तो बहरहाल इनकी बड़ाई मैं बताऊंगा कि इनके साथ हमारे कुछ इतने नज़दीकी ताल्लुकात बाद में हो गए, मतलब 10-12 साल से। और ये कोई किताब निकालते बेचते थे, बाई पोस्ट बेचते थे। ये जो नंबर निकला है शिराजे का, इन्होंने कोविड में इसको इसी में मतलब पोस्ट करके, फिर ये है कि वो छोटे लोगों को, हम जैसे लोगों को, अपने से कम उम्र ये जो है उनके शफकत का हाथ था और खुलूस के, ये मैं उनके खुलूस की बात कर रहा हूँ। बाद में ये है कि उन्होंने इसलिए ये जो टैंक साहब का नंबर लिखा, बहुत बड़ा ज़ख़ीम नंबर, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक उसने जो मजमून लिखा, उसमें शेख अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ लिखा, चूँकि अब किसी को पता नहीं था, वो यहाँ पर रिलीज़ हो गया। और उसके बाद वो शुजात बुखारी ने वो राइजिंग कश्मीर में वो लगा दिया, वो सारा फ़ोटो शोटो ये वो, तो उस पर वो बाल हुआ इतना कि वो तमाम ज़ब्त हो गया वो ये जो है। और इसकी एक तहरीर पर तो ये जो है लिखना तो बहुत है, वो है ना, ये जो है जानबाज साहब ने कहा है ना, यहाँ बन त्यू सखनवर युस कौमस यक बकार नत नारन मन बंगरे लगे। इसमें एक चीज़ थी। दूसरा ये है कि तर्जुमा इनके, मतलब उम्र ख़याम का तर्जुमा इन्होंने किया, रुबाया 150 रुबाइयों का तर्जुमा किया। मतलब उस किस्म का कोई भी तर्जुमा, अभी कश्मीरी में बहुत तर्जुमे इन्होंने किए हैं लोगों ने, मतलब मयार का था। अच्छा, द वैली ऑफ कश्मीर उसका इन्होंने किया है, भूतिका का इन्होंने बहुत इन्होंने किया। और मतलब हर लिहाज से ऑलराउंडर थे, मतलब शायर भी थे तो कमाल के। इनका वो शबनम कदा क्या है, वो इनका एक है, शोर सा उठा सुना एक घर की बेटी को उठाकर ले गया कोई, जवां थी चांदनी उसका नाम था, जवां थी चांदनी था नाम उसका, चांद जैसी थी। और उसके भाई सूरज नाम था उसका, पर तो गोया आसमां टूटा। बहन का लाडला था और बहन में रूह थी उसकी, किसी से कुछ न बोला और बहन की खोज में निकला। फिर अगली रात को जब चांदनी बस्ती में लौट आई, ज़बां खामोश थी, आंखें बुझी थी, बाल बिखरे थे, बदन था चूर उसका और कदम भी लड़खड़ाते थे। महले में अजब आलम था, गम में भी था खुशी भी थी, गम भी था खुशी भी थी। कोई खुश था कि लौट आई, कोई कहता क्यों आई। खुदाया आसियों को सब गुनाहों का अफू करना, खुदाया असमतों के चाक पर्दों को रफू करना। ये जो है माजी की जो यादें हैं ये बड़ी तल्ख हैं, लेकिन ये दस्तूर है। एक वो जो थे बेबाक इंसान थे, एक सच्चे ये जो थे वो अदीब थे और हकीकी मानों में अदीब थे। इस किस्म के लोग अब हमें ढूंढे भी। ख्याल साहब को उस वक्त भी जानता था जब द फ्रंट निकालते थे, और फ्रंट हमारे अंतराग आता था क्योंकि बेग साहब के रिश्तेदार हमारे करीब रहते थे। फ्रंट उनके पास, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग के पास। तब मैंने जाना, तब से आज तक मुझे उनकी बहुत सारी यादें आती है। एक बार ऐसा हुआ, प्रतिभा पाटिल लाल कृष्ण अडवाणी की पोती, उसको आए थे कश्मीर, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 90 के बाद, इंटरव्यू लेने थे। तो मुझे ऑफ़र की गई एक अच्छे अमाउंट की कि आपने हाजिन भी जाना है, आपने बहुत सारी लोकेट की, आप कश्मीर आते जाते रहते हो, आपको कुछ लोग यार दोस्त जिनको उन पर कुछ और लेबल लगा था, मैं उनका दोस्त था। मैं 90 के बाद भी जाता रहा, महीने में एक बार। तो मुझे कह दिया गया आपको इंटरव्यू लेना है।
ख्याल साहब के, मैं ख्याल साहब के रावलपुरा उनके घर गया। जब मेरे पास मेरे साथ 2-4 कैमरामैन था, साउंड रिकॉर्डिस्ट था, और एक था वो आईबी का आदमी था, मुझे तब तक पता नहीं चला। ये में एक खुशगवार माहौल है, अपने हैं सब। गद्दी पे बैठी तो इनटॉलरेंस का एक दौर चला और माइनॉरिटीज़ को भारत भर में कुचला गया, दबाया गया, जो सिलसिला बदस्तूर जारी है, जारी और सारी है। तो भारत भर में एक कैंपेन चली थी, अवार्ड वापसी का एक सिलसिला चला था, उसमें गुलाम नबी ख़याल पहले शख्स हैं मुझे लगता है मुल्क कश्मीर से जिनने हिम्मत जुटाई थी अक्टूबर 2015 में और साहित्य अकेडमी का साहित्य अवार्ड वापस किया था, जो उनको गाशिर के उस पर मिला था, किताब पर ल्यूमिनरीज़, जो उन्होंने 1973 में लिखी थी और 1975 में उनको साहित्य अवार्ड मिला था। तो मैं उसके बाद उनको मिलने, क्योंकि मुझे मज़ाहमतकारों से बड़ी मोहब्बत रहती है, तो हम गए थे उनसे मिलने। तो हमने उनको कहा था, भाई जब सारे लोग मफाहमत पे राज़ी हैं तो आपने ये क्यों किया, बगावत क्यों किया, बगावत पे क्यों आमादा है। तो उन्होंने बहरहाल, मुझे याद है कि बड़ी एक मशहूर नज़म है उस अदीम हाशमी की, वो उन्होंने पढ़ के कुछ शेर, मफाहमत न सिखा जब्र ना रवा से मुझे, मफाहमत न सिखा जब्र ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे, ज़बान जिस्म का कुछ जहर तो उगल डाला, बहुत सुकून मिला तलख़ी नवा से मुझे, रचा हुआ है बदन में अभी सुरूर गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सज़ा से मुझे। बहरहाल तवील नज़म है, वही कि मफाहमत न सिखा जब्र ना रवा से मुझे। तो सवाल ये पैदा होता कि आज कहते हैं कि हदीस मशहूर है कि जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना अफजल जहाद है। मुझे लगता है ये ज़िम्मेदारी अदीबों, शायरों, दानिश्वरों पे लाज़िम होती कि जो कलाम कहते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने गोयाई बख्शी है, और हमें मुहासबा करना है कि इस दौर में क्या हम इस तरीक़ा का कोई फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, जब गटाटोप अंधेरा, जब हर तरफ जुल्म जबर की आंधियाँ हैं। अभी 2 रोज़ कबल एक दिन मनाया गया यहाँ पे, जिसको यूटी दिवस का नाम दिया गया। आज से 5 बरस पहले हमारे सारे जमहूरी सियासी इख्तियारात छीन कर हमें बेइख्तियार बना के हमें नंगा किया गया, और फिर एक और हुक्मनामा आया कि तुम्हें यूटी दिवस मनाना है, उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स, हसूलियाबियाँ गिनवानी हैं। यानी इस दौर में हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ, ना अदीब हूँ, ना मैं कोई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे शोरा इकराम को, हमारे अदीबों को, हमारे कलमकारों को इस जानब भी एक रोल अदा करना चाहिए। कम से कम मज़ाहमती लिटरेचर, मज़ाहमती अदब, उसके नाम से भी कोई दिन मनाइए। जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उनको मुझे लगता है मिसाल बनाकर उनके तईं बेहतरीन खराज अक़ीदत यह होगा कि हम कम से कम उनके खून में जो बगावत रची बसी थी, हम उसको किसी न किसी तरीके से अपनाएं। बाकी ग़ुलाम नबी ख़याल साहब जैसे असीर साहब ने बताया, वाकई आलमी शोहरत याफ्ता, अगरचे उनका कोई कामयाब अखबार नहीं निकाल पाए, लेकिन आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा भी है, मैंने भी एक कुछ टोटके जमा किए थे जो कई सफ़ात पे मुश्तमिल वो एक मकाला बन रहा था, लेकिन वो जैसे इन्होंने कहा भी कि इंडिया टुडे मैगज़ीन के साथ 10 साल रहे, स्टेट्समैन 1977 में, वॉइस ऑफ अमेरिका, इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, संडे मेल, गुजरात समाचार, नेशन पाकिस्तान, जर्मन रेडियो, स्काई न्यूज़ टीवी लंदन, गार्डियन लंदन, पाकिस्तान टीवी, नवाए वक्त पाकिस्तान, टाइम मैगज़ीन, यूएसए का बड़ा मशहूर टाइम मैगज़ीन है, उसके साथ भी वाबस्ता रहे हैं। तो उनकी चंद जो शोहरा आफाक किताबें, यूँ तो 30 किताबें हैं, उनमें जैसे बताया इन्होंने कि रुबायात उम्र ख़याम का तर्जमा, जंजूरा हिंदसाज, गाशिर पर उनको मिला है साहित्य, जी गाशिर मीनार, जी, और इकबाल और तहरीक आज़ादी कश्मीर, इनके 4 एडिशन उन्होंने लिखे हैं। तो कारवान ख़याल, चनार रंग, कश्मीर की वादी,
کہ لیوز آف کشمیر، پروگریسو لٹریری موومنٹ ان کشمیر، اور شبنم کا آتش، جیسے انہوں نے بتایا، شبنم کا آتش کدا وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی شہرۂ آفاق کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو باقی کلچرل اکیڈمی اور ساہتیہ جو انعامات میں جو ہے ان کے جو ہے انعامات ہے وہ ناگری پرچارنی سبھا کلکتہ سے، ہاں جی اپنے حتاش صاحب، جرنلسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن ایوارڈ نئی دہلی، لالا ملک راج سراف ٹرسٹ ایوارڈ جموں، دوردرشن ایوارڈ چندی گڑھ، دستار فضیلت پیش کردہ ریڈیو کشمیر کشتواڑ کا، اور راج بیگم ایوارڈ سری نگر ان کے خاص انعامات میں سے ہیں. اور اپنی صحافتی زندگی میں جن لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ان میں وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی، اور انہیں جو برٹنڈر رسل نے بھی کوئی خط لکھا ہے، 1966 میں ایک خط لکھا تھا، اور 1990 میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کا لاہور میں انٹرویو کیا ہے. اسی طرح صدر ہند گیانی ذیل سنگھ کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے. سکندر حیات خان وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے. صدر پاکستان ضیاء الحق کا انٹرویو کیا، لتا منگیشکر کا انٹرویو کیا، نصرت فتح علی خان اور گلزار وغیرہ ان لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے. تو یہ ان کا جو ہے صحافتی یہ. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ کیونکہ اب بات ہوگی اور اگلی نشست میں آپ ضرور اس حوالے سے بھی بات کریں. بہت بہت شکریہ. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بیچ ڈاکٹر حسین صاحب تشریف لائے، جو جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے ریاستی صدر بھی ہیں، اور غلام نبی خیال کے حوالے سے آپ کیونکہ تاخیر سے آئے، اگر آپ 2 منٹ میں کچھ کہنا چاہتے تو پلیز. اور بہن ہماری ہیں، وہ بھی آپ بھی کہنا چاہیں کچھ تو پلیز 2 منٹ کے لیے. ہاں پلیز جو بھی وہ کا تقریباً انہوں نے کوئی ہی ایتھورائزڈ 30 بکس، جس میں اردو مردہ 30 کا مجھے تو اس میں جو ہے اردو، انگریزی اور جو کشمیری بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے ہمارے لیے. خاص کر ایکچولی جو اس طرح کے جو شاعر، ادیب اور مفکر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے کہ جو راستہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آگے اپنے لوگوں کو یا اپنے قوم کو آگے کیسے بڑھانا ہے. اس طرح دنیا میں الگ الگ طرح کے جو ہمارے بڑے شعراء گزرے ہیں، جو کچھ اس میں سے جو بڑے انقلابی لوگ تھے، تو ان کا بھی ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ ہمیں جو ہمارے حالات، جو خاص کر جموں کشمیر کے جو ہمارے حالات ہوئے 1953 سے، جس طرح ہمیں وقت پہ ہمیں ڈس امپاور کیا گیا ہے، کیا غلطی ہماری تھی کہ ہم لوگوں کو یا تو جو ہمارے کہوں گا ریئل ٹرائبیوٹ ٹو دس پرولیفک پوئٹ اینڈ جیسے کہا کراؤڈ فیس کو، یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے جو انہوں نے ریبیل اپنا اس میں دکھایا ہے کہ آئیڈیاز کو دیکھو نا، آئیڈیاز ڈو ناٹ نیڈ ویپنز. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ان کے خیال کو، ان کے جو انقلاب کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے، تاکہ یہ دور تک جو اس کو ہم لے چلے جنریشن تک. تو آئے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے بھارت ورش کا، ہم سارا سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ جو اردو ادب کو ختم کرنے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے. سلیبس کو نکالا گیا ہے، اور ہمارے جو شاعر ہیں کچھ ان کے جو ہم سبجیکٹ کہہ دیں گے ان کو بھی سلیبس سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی سازش ہے اردو کو پس پشت ڈالنے کی. تو ہم یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس میں فور فرنٹ پہ آ کے اس کو اردو ادب کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ شاعر جو ہیں ہمارے رول ماڈل ہوں، ان کے فٹ سٹیپس پہ ہم چلیں، اور ان کا درس جو ہے اس کو ہم آگے لے جائیں جہاں تک ہو سکے. تو یہ ایک جو ہے وہ کنٹینیوس چیریٹی ہے. تھینک یو سو مچ. بہرحال ایک مصرع ہے کہ بیٹھے ہیں منتخب ہی یہاں روزگار کے، اور جو باتیں ہوئیں ہر آدمی نے جو بات
की, बहुत तफसील के साथ, बहुत गहराई के साथ। वो 10-10 लोग मिल के भी नहीं कर सकते थे उतनी तफसील के साथ, उतनी गहराई से। तो असीर साहब बड़े गहराई से अदब का मुताला करते हैं। अतार साहब ने जो बातें की वो हमको भी नहीं मालूम थी, और असदुल्ला वानी साहब ने बात की। लेकिन बुनियादी बात ये है कि जो रास्ता ख़याल साहब ने इख्तियार किया था मज़ाहमत का, यानी झूठ, गलत, इस्तेहसाल और जबर के ख़िलाफ़ जो वो लिखते रहे थे, जैसा कि हमारे अभी नौजवान साथी ने कहा कि सबसे बड़ा ख़राज अक़ीदत ये होगा कि उनका जो उन्होंने जो एटीट्यूड अपनाया था उसको कायम रखा जाए। लेकिन अब ये है कि सिर्फ इनकलाबी कह देने से ख़याल साहब की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि मैंने देखा है, यानी मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब किस नौइयत के वो हम जानते हैं, वो जानते हैं। असीर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बातें की, यानी वो किस तरह ज़िंदगी जीते रहे, क्या क्या लिखते रहे, किस किस से ताल्लुकात रहे, सारी बातें यहाँ पर आ गई। शाहिद सलीम साहब ने और तमाम लोगों ने। मैंने देखा है उनको कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में यूसुफ टैंक साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। हामिदी कश्मीरी साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है तनकीद के हवाले से। लेकिन इनके काम पर उन्होंने जो बातें कही हैं, जहाँ इन लोगों से कुछ कहना मेजॉरिटी है और दूसरी मेजॉरिटी के साथ चला जाता है, तो उनका तो उसका तो अंजाम ये होता है जो हमने देख लिया, और आप खुद भी अंदाज़ा कर चुके हैं।